Hello everyone, the question says that if m is the mass of water that rises in a capillary tube of radius r, then mass of water which will rise in the capillary tube of radius 2r is. So in this question, this problem is based on the capillary. So we know height of a liquid rise in a capillary. We know formula to find the height in a capillary tube, that is h equals to 2t cos theta divided upon rho r g, where t is tension and t is the angle of the meniscus. So we know here height is inversely proportional to r is radius. So now it is said that what will be if m is the mass of water that rises in a capillary tube of radius r, then mass of water which will rise in a capillary tube of radius 2r. So now we have to find out height. So here we get relation h1 h2 will be equals to r2 divided upon r1. Now here r1 is radius r, here r1 is radius r, then height h1 is h and mass is m, When radius r2 is 2r, then h2 will become. Now substitute the value of r2 as 2r and this is r. So we get h2 will become h upon 2 by simplifying. Now mass. So mass we have to find out in this question mass. So m2, what will be m2? Now we also know mass is the volume into density. We know mass equals to volume into density. So in first case volume is 4/3. Volume of this capillary tube. Capillary is just like a cylinder. So we use volume as pi r square h and density is rho. Now for m dash it will become pi, radius is 2r square and height is h upon 2, but rho will remain same. So here we get 4 pi r square h upon 2 and rho. So now it will cancel out. So we get this value equals to m. Hence our new mass will become m dash will equals to 2 into m. So it is our new mass, that is 2m. Hence option D is right. I hope you understood this explanation. Thank you. Welcome friends. The following observation were taken for determining surface tension of water by capillary method. অর্থাৎ একটা ক্যাপিলারি মেথডে যদি সারফেস টেনশন বার করা হয় ওয়াটারের, তো এখানে পদ্ধতিগুলো দেওয়া আছে। যে ক্যাপিলারি টিউবের ডায়ামিটার দেওয়া আছে d ইকুয়ালস টু দেওয়া আছে 1.25 × 10⁻² মিটার, ঠিক আছে। এবং ওই ক্যাপিলারি টিউবে ওয়াটারের রাইজ হয়েছে h হয়েছে 1.45 × 10⁻² মিটার। তাহলে জি কনস্ট্যান্ট আছে 9.8 মিটার পার সেকেন্ড। তো এবং সারফেস টেনশনের রিলেশন হচ্ছে ওইটা টি ইকুয়ালস টু r/h/g/2 × 10³ নিউটন পার মিটার। তো দ্য পসিবল এরর ইন সারফেস টেনশন ক্লোজ টু, অর্থাৎ সারফেস টেনশন মেজারমেন্টের এরর পসিবল কত হবে দেখাতে হবে, ঠিক আছে। তো তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ডায়ামিটার ডি ইকুয়ালস টু দেওয়া আছে 1.25 × 10⁻² মিটার। তো এর যদি অ্যাকুরেসি দেখি বা ডেল্টা ডি, ওকে, তো অ্যাকুরেসি ডেল্টা ডি হবে, আমরা যে স্কেলে মেজার করেছি সেটা মেজার করেছি 1.25 × 10⁻² মিটার, অর্থাৎ পয়েন্টের পরে দুটা ডিজিটে মেজার করতে পারছি। অর্থাৎ এই লাস্ট ডিজিট যে মেজার করেছে ওইটার মধ্যে এরর থাকতে পারে, অর্থাৎ 1.25 এর জায়গায় ওটা 1.24 থেকে 1.26 এর মধ্যে ভ্যারি করতে পারে, অর্থাৎ ডেল্টা ডি হবে তাহলে 0.01, কারণ 25 এর জায়গায় +-1 হতে পারে, তাই জন্য 0.01 × 10⁻² এত মিটার। এবং কি দেওয়া আছে না, রাইজ অফ ওয়াটার এইচ ইকুয়ালস টু দেওয়া আছে 1.45 × 10⁻² মিটার। তো এখানে যদি অ্যাকুরেসি দেখি ডেল্টা এইচ, এটাও ঠিক একইভাবে আসবে যে পয়েন্টের পরে সে দুটো ডিজিট মেজার করতে পেরেছে, অর্থাৎ এই লাস্ট ডিজিট যেটা আছে ওইটার মধ্যে এরর আসতে পারে 5 জায়গায় 6 অথবা 4 ম্যাক্সিমাম, তাই এর এরর হবে সেম 0.01 × 10⁻²
মিটার। ওকে, এবং সারফেস টেনশন দেওয়া আছে টি ইকুয়ালস টু দেওয়া আছে আর এইচ জি বাই 2 ইন্টু 10 কিউব নিউটন পার মিটার। তো আমরা যদি এরর বার করি তাহলে এরর ডেল টি বাই টি যদি বার করি তাহলে হবে, তাহলে এখানে আসবে ডেল আর বাই আর প্লাস ডেল এইচ বাই এইচ প্লাস ডেল জি বাই জি। ওকে, তো জি তো গ্র্যাভিটেশনাল কনস্ট্যান্ট, এটা কনস্ট্যান্ট টার্ম, তাই ডেল জি বাই জি হয়ে যাবে 0। আর ডেল আর বাই আর ডেল এইচ বাই এইচ বার করতে, তো তাহলে আমরা যদি ডেল আর বাই আর বার করি তাহলে ডেল আর বাই আর এর জায়গায় আমরা করতে পারি 2 ইন্টু ডেল আর বাই 2 ইন্টু আর, আবার ডায়ামিটার হচ্ছে জানি রেডিয়াসের ডবল, তাই এটা হয়ে যাবে ডেল ডি বাই ডি। ওকে, তো এটা যদি বসাই তাহলে ডেল ডি দেওয়া আছে 0.01 ইন্টু 10⁻⁻² বাই ডি হচ্ছে 1.25 ইন্টু 10⁻²। তাহলে এটা হবে এর একুরেসি। 10⁻² যদি কেটে যায় এটা পড়ে আছে 0.01 বাই 1.25। আর ডেল এইচ বাই এইচ যদি বার করি তাহলে এখানে আসবে ডেল এইচ বাই এইচ ইকুয়ালস টু হবে, ডেল এইচ তো আমার দেওয়াই আছে যে 0.01, ওকে, আর এইচ হচ্ছে 1.45 ইন্টু 10⁻², তাহলে ওটা হবে 0.01 ইন্টু 10⁻² বাই 1.45 ইন্টু 10⁻² ইকুয়ালস টু আসবে, তাহলে 10⁻² কাটলে আসবে এটাও 0.01 বাই 1.45। তাহলে ডেল টি বাই টি যদি বার করি তাহলে আসবে টি ইকুয়ালস টু আসবে তাহলে 0.01 বাই 1.25 প্লাস 0.01 বাই 1.45 ইকুয়ালস টু আসছে আমাদের 0.0145 তো পার্সেন্টেজ অফ এরর যদি দেখি, পার্সেন্টেজ অফ এরর কত হবে তাহলে ডেল টি বাই টি ইন্টু 100% ইকুয়ালস টু তাহলে আসবে 0.01489 ইন্টু 100% ইকুয়ালস টু হয়ে যাচ্ছে তাহলে 1.489%। তাহলে which is nearly about 1.5%। ওকে, তাহলে এটাই হবে আমাদের পার্সেন্টেজ অফ এরর। ওকে, তাহলে আমাদের এখানে যে 4টা অপশন আছে এই 4টা অপশনের মধ্যে আমাদের आंसर ऑप्शन बी হবে आंसर 1.5%। हमें इस क्वेश्चन में दिया है कि ऑन हीटिंग द वाटर, ठीक है, बबल्स बीइंग फॉर्म्ड एट द बॉटम ऑफ द वेसल्स डिटैच एंड राइज। तो यहाँ क्या कर रहा है, जैसे ही इसको हीट कर रहे हैं वाटर को, तो यहाँ से ये एक बबल बन रहा है और इस सरफेस से डिटैच हो रहा है, ठीक है। तो टेक द बबल्स टू बी ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर, ये बोल रहा है कि जो बबल बन रहा है उसका हम रेडियस मान रहे हैं आर एंड इट मेकिंग एन सर्कुलर कंटैक्ट ऑफ रेडियस आर। ये क्या कर रहा है, इस सरफेस से सर्कुलर कंटैक्ट बना रहा है जिसका रेडियस स्मॉल आ रहा है, ठीक है। हमें दिया है कि जो आर है बहुत ही छोटा है, तो हमें पूछा है सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर दे दिया हमें टी, तो हमें निकालना है कि वैल्यू ऑफ आर बिफोर द बबल डिटैच, ठीक है। तो हम पहले इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बना देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बबल्स है, ठीक है, जिसका रेडियस हमें दे दिया है आर, ठीक है, और ये है हमारा स्मॉल क्या है, मेकिंग ए लिखा है, क्वेश्चन में दिया था कि सर्कुलर कंटैक्ट बना रहा है, तो ये हमारा सर्कुलर कंटैक्ट है विद द सरफेस जिसका रेडियस क्या है स्मॉल आर, ठीक है। इसका रेडियस है हमारा स्मॉल आर, ठीक है। अब देखो इसको हम मान लेते हैं थीटा, ठीक है। अब ये क्या है, टेंजेंट है, ठीक है। अब देखो ये हमारा रेडियस है और ये एक तरह से टेंजेंट है, ठीक है, क्योंकि ये हमारा कौन सा फोर्स लग रहा है, टेंशन,
मतलब ये सरफेस टेंशन फोर्स क्या लगता है, अलोंग द सरफेस लगता है, ठीक है। तो ये हमारा टेंशन, और ये एक तरह से टेंजेंट की तरफ बिहेव कर रहा है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, एंगल 90 डिग्री, ठीक है। तो ये जो सरफेस है ये हमारा क्या है, ग्राउंड वाला सरफेस है, ये हमारा सरफेस है हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और हमने ये माना था कि यहाँ से हमने ये एंगल थीटा लिया था, ठीक है। जब ये एंगल हमने थीटा माना, ठीक है, तो ये 90 डिग्री, ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना होगा, थीटा। तो इसका मतलब ये जो हमारा एंगल ये हॉरिजॉन्टल से जो बन रहा है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन से ये एंगल हमारा कितना बन रहा है, थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे जो टेंशन फोर्स होगा, अगर इस डायरेक्शन में देखें तो ये क्या होगा, टी साइन थीटा। अब यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये हमारा ये दिया है, इस ट्रायंगल में बात करें, इस ट्रायंगल में, तो ये हमें थीटा दिया है, और ये एंगल ये आर है, और ये स्मॉल आर है। तो यहाँ से अगर साइन थीटा करेंगे कैलकुलेट, तो ये आर अपन आर हो जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि जैसे ही बबल डिटैच करेगा उस समय हम वैल्यू ऑफ आर निकालना है। तो उस समय इसको डिटैच करने के लिए क्या होना चाहिए, बायोंट फोर्स जो होता है, बायोंट फोर्स इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जो वहां से सरफेस टेंशन फोर्स होगा, ठीक है। मतलब जो हमारा बायोंट फोर्स है, बायोंट फोर्स ये क्या होना चाहिए, सरफेस टेंशन फोर्स से ज्यादा होना चाहिए। इस सरफेस टेंशन फोर्स से ज्यादा होगा तो बायोंट फोर्स क्या होता है, हमारा अपथ्रस्ट फोर्स होता है, ये हमारा क्या हो जाएगा, बायोंट फोर्स, ये इस पे लगेगा ऊपर, ठीक है, जिसको हम अपथ्रस्ट फोर्स भी बोलते हैं, अपथ्रस्ट फोर्स। अगर ये फोर्स हमारा ज्यादा हो गया तो ये क्या करेगा, ये जो सर्कुलर यहाँ पे बन रहा है, ये क्या करेगा, जिसका रेडियस आर है, ये डिटैच हो जाएगा। तो उस समय उसमें हमें सर्कुलर रेडियस आर स्मॉल आर बताना है, ठीक है। तो बायोंट फोर्स ग्रेटर देन इक्वल टू सरफेस टेंशन, ठीक है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन इक्वल टू बायोंट फोर्स लिख सकते हैं, बायोंट फोर्स, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे कि सरफेस टेंशन लिख रहे हैं। सरफेस टेंशन क्या होता है, ये क्या लगता है, ये अलोंग द ये जो सरकमफ्रेंस है उस पे लग रहा है, जहाँ ये अलोंग द सरकमफ्रेंस, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में क्या लग रहा है, टी साइन थीटा, ठीक है। तो टी साइन थीटा, और अलोंग द सरकमफ्रेंस है, तो अलोंग द सरकमफ्रेंस इसका क्या हो जाएगा, सर्कुलर रेडियस का ये हो जाएगा 2 पाई इंटू आर, ठीक है। अब ये हो गया हमारा टोटल सरफेस टेंशन, ठीक है। जो स्मॉल रेडियस आर पे सर्कल है, रेडियस आर है, ठीक है, इस सर्कल पे जितना सरफेस टेंशन लग रहा था वर्टिकल डायरेक्शन में हमने लिख लिया, ठीक है। अब बायोंट फोर्स क्या होता है, बायोंट फोर्स होता है तो वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड बाय दिस जो हमारा सर्कुलर रेडियस है, तो ये क्या होता है, रो वी इंटू जी, ठीक है। तो ये जो हमारा स्फीयर बन रहा है, इससे ये कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड किया है उस समय उस वाटर का, ये उसके बायोंट फोर्स के बराबर होता है, ठीक है। तो ये क्या है, रो, रो किसका, वाटर का, तो रो हो जाएगा वाटर, ठीक है। अब यहाँ से टी साइन थीटा यहाँ से लिख लेते हैं, साइन थीटा क्या है, आर अपन आर है, तो ये आर बाई आर, और ये हो जाएगा 2 पाई आर, ठीक है। तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं। अब रो ऑफ वाटर है, वॉल्यूम कितना होता है, स्फीयर है वो, तो 4/3 पाई इंटू रेडियस कितना है, कैपिटल आर है इस स्फीयर का, ठीक है। अब यहाँ से क्या आएगा, रो भी हो गया, और ये हो गया हमारा जी। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो इसको आगे लिख रहे हैं, ये हो जाएगा हमारा टी 2t अपन आर इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। ये है हमारा रो ऑफ वाटर इंटू 4/3 इंटू आर के पावर 3 इंटू जी। हमें आर स्क्वायर निकालना है, तो ये आर स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2 से ये कट जाएगा, तो ये जाएगा 2/3, और ये टी नीचे या आर ऊपर चल जाएगा, तो आर के पावर 4 जाएगा, रो ऑफ वाटर इंटू जी डिवाइड बाई टी, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आ गया आर इक्वल टू आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर 2/3t इंटू रो इंटू जी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन का आंसर। Hello dear students, so we are given with a question which says assume that a drop of liquid evaporates by decrease in its surface energy so that its temperature remains unchanged. What should be the minimum radius of the drop for this to be possible? The surface tension is T, density of liquid is rho, and L is the latent heat of vaporization. So by the concept of surface energy we can write
surface energy, that is delta E, can be written as surface tension into change in area. That means this much, or we can rewrite this equation as delta E upon delta A. This is the one way to define the surface tension, that is the energy that is being stored in the unit area. Alright, so this much amount of energy is being stored in the particular area. So from here we can write delta E. Further we can use this equation, delta E can be written as T into delta A, or we can write it as delta A. Alright, now as we have been told that a decrease in surface energy leads to the evaporation of the this drop. So we can say this change in energy will lead to the evaporation of drop, and this will, we can say, the change in energy will become the heat that is being given to the drop to change its surface area. Suppose that if let's try to visualize it by drawing a diagram over here. So we have been given with a bubble drop, and which is having a radius of r. So if some sort of heat, if its surface energy reduces, so it's it starts evaporating. And let's say we got, let's suppose that from initially, let's say it was having an r, so it reduces to some, it starts evaporating, means it starts reducing its area. So this much amount of area has been, or we can say radius has been reduced. So we can write the radius of this bubble, that is inside which I have drawn it with dotted circle, can be given as r minus of delta r. Alright, so I hope you are getting. So this much amount of radius has been left at any instant we are considering it. So we can say if the heat is been given, that is in terms of surface energy is reducing, so we can say the area which is the energy which is required to evaporate the drop is will be equal to change in its surface energy. Alright, so that's why instead of delta E we will write it as Q, and that would be equals to T into delta A. Delta A is change in area. Now we can write it, solve it as further. This Q is the heat, latent heat of vaporization. Sorry, it's the heat that is means responsible for its evaporation. So we can write, instead of this we can write it as ml, that is, we know heat of vaporization is given by mass into its latent heat of vaporization. So ml can be written as T into delta A. Further we can write, instead of mass we can write it as V that is rho into volume, and volume we can write here as volume will be area, that is 4 pi r square, into change in radius, that is delta r. Alright, or we can write it as capital change in radius. This is the volume, and into L, and that's equals to T into area. Change in area can be given as 4 pi r square. We can write it as r square minus of r minus delta r square. Alright, so this is the change in area. I hope you are getting this point, and let's say it is capital R. So from here if we solve it further, we can say 4 pi can be cancelled out from here, and we can write the remaining equation as rho r square delta r into L, and that is equals to T. And if we solve the bracket, we will get r square minus of r square, and it would be plus of 2 delta r, 2 r delta r, and that can be written as minus of delta r square. Alright, so this is the expansion of this bracket. So from here we can say
this term and this term will get cancelled out, and since delta r is very small, so we can say delta r is very less than r, so we can neglect this value. So what we are left with is, we can write it over here as rho r square delta r into L, and that is equals to, we can write it as T into 2r delta r. So from here we can say delta r will get cancelled out, and 1r and 1r will again get cancelled out. So we are left with the value of r as T 2t by rho L. Alright, so this is the value of minimum radius that a bubble should have to evaporate. So the correct answer matching is option C is the correct answer to this question. So I hope you have understood the concept, and thank you for watching. Hello friends, we have a question. A glass tube of uniform internal radius r has walls separating the two identical ends. Okay, initially the valve is in tight closed position. Initially closed किया गया है. End 1 has a hemispherical soap bubble of radius r, and end 2 has a subhemispherical soap bubble of radius as shown in the figure. Okay, ये हो गया. Just after opening the valve हमको find out करना है कि किधर से किधर फ्लो होगा. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं फ्रॉम द फिगर, रेडियस जो एंड 1 है वो हेमिस्फेरिकल है. सो इट इज गिवन दैट R2 इज ग्रेटर देन R1. ठीक, यहाँ पे इसका कर्वेचर ज़्यादा है. सो यहाँ पे जो रेडियस होगा एंड 1 का, इट विल बी लेसर एंड ए सब हेमिस्फेरिकल, तो यहाँ पे रेडियस R2 बड़ा होगा. सो जो भी इनसाइड प्रेशर होगा जस्ट इनसाइड, मीन्स एट दिस पॉइंट जस्ट इनसाइड द सोप बबल विल बी, क्या होगा हमारा प्रेशर, दैट इज P1 विल बी P0. ओके, सोप बबल है, सो इट विल बी 4T by R1. okay, and for P2 it will be P0 plus 4T divided by R2. okay, तो here P0 will be same and 4T है क्योंकि यहाँ पे सोप बबल है, and R2 is greater than R1. okay, R2 बड़ा तो ये टर्म छोटा होगा. so यहाँ पे we can conclude that P1 will be greater than P2. ये हुआ. यदि प्रेशर 1 पे ज़्यादा है and 2 पे कम है, then the flow will be in this direction, that is from 1 to 2, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा से कम की तरफ फ्लो होगा. सो जो भी हमारा फ्लो होगा इट विल बी फ्रॉम 1 to 2. सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, द एयर फ्रॉम एंड 1 फ्लोज टुवर्ड 2. सही है. नो चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द सोप बबल, ये तो गलत है क्योंकि यदि फ्लो होगा तो वॉल्यूम में चेंज होगा. ओके, एयर फ्रॉम एंड 1 फ्लोज टुवर्ड एंड 2, द वॉल्यूम ऑफ द सोप बबल एट एंड 1 डिक्रीजेस. जब 1 से 2 की तरफ फ्लो होगा तो जो भी वॉल्यूम होगा 1 का, इट इज गोइंग टू डिक्रीज. सो करेक्ट ऑप्शन विल बी सेकेंड वन. ओके, सो सेकेंड वन विल बी अवर रिक्वायर्ड आंसर. थैंक यू. Hello everyone, let us start with our question. In this question, what is given? A uniform capillary tube of inner radius small r is dipped vertically into a beaker filled with water. Now the water rises to a height h in the capillary tube above the water surface in the beaker. Now if the surface tension is given as to be sigma, the angle of contact is given as to be theta, then we need to check which of the following statement is true. So first of all, we should write what is the formula for the capillary rise. So in terms of the given parameters, h, the capillary rise is given as 2 sigma cos theta divided by rho small r into g, where small r is what? It is the angle of the this radius of the capillary. Now in the A option, what is given? For a given material capillary tube, then h decreases with increase in r, small r. Small r is what? It is the radius of the this capillary tube. So from this equation we can see that h would be inversely proportional to r. Why? Because these terms are constant. This sigma, theta, rho and g would be constant. So if we are increasing r, so what will happen? Then h would be decreasing. So that means A is correct. So we can say that A is the correct option. Now if we check our B option, for a given material, h is independent of sigma. No, it is wrong in the B option, because we know that h is directly proportional to sigma. So it is dependent on sigma. So B is wrong. Now if we check our C option. Now if this experiment is performed in a lift going up with constant acceleration, then h would decrease. Okay, so if the lift is going upward with constant acceleration, then what is the value of the effective g or net g? Because it would be going upward, so there would be a pseudo force which would be acting downward. So let's say if this is the upward force with which lift is moving, so it would be
the pseudo force which would be acting downward, and there would be an acceleration due to gravity which would be acting downward. So the net acceleration would be A plus G. So from this expression, we see that our capillary is inversely proportional to the this G effective. It is basically G effective. So we can say that H would be inversely proportional to G net or G effective. Anything would be same. H is inversely proportional to 1 by G effective. We just write which is equals to G net. So if we increase this, then H would decrease. So if we check our C option, so it is saying that it going upward, then H would decrease. So C is also correct. Now H is proportional to the contact angle. So H is not proportional to theta, but it is proportional to cos theta. So D is wrong. So what are the correct option? A is the correct option and C is the correct option. So hope you have understood this solution. Thank you. इस क्वेश्चन में दिया गया कि व्हेन लिक्विड मेडिसिन ऑफ डेंसिटी रो ओके इज पुट इन आई, जब इसको आई में क्या करते हैं, पुट करते हैं, इट इज़ डन विथ हेल्प ऑफ ड्रॉपर. क्या किया जाता है, इसको ड्रॉपर के साथ ड्रॉप किया जाता है. आँख में दवा डालते हैं तो ड्रॉपर का ही यूज करते हैं. अब कह रहा है कि एज द बल्ब ऑन द टॉप ऑफ द ड्रॉपर इज प्रेस्ड, जो टॉप ऑफ द ड्रॉपर होता है बल्ब, उसको क्या किया जाता है, प्रेस करते हैं. ए ड्रॉप फॉर्म एट द ओपनिंग ऑफ द ड्रॉपर. ओके, ड्रॉप जो होता है ड्रॉपर के ओपनिंग पे बनता है. वी विश टू एस्टिमेट द साइज ऑफ द ड्रॉप. अब ये जो साइज बन रही है उस ड्रॉप की वो क्या होगी, यही हमें क्या करना है, एस्टिमेट करना है. वी फर्स्ट एज्यूम दैट द ड्रॉप फॉर्म्ड एट द ओपनिंग इज स्फेरिकल. तो पहले तो ये एज्यूम करना है कि जो ड्रॉप बन रहा है कि वो शेप में किस में है, स्फेरिकल है. बिकॉज इट रिक्वायर्स अ मिनिमम इंक्रीज इन इट सरफेस एनर्जी, क्योंकि हम जानते हैं कि सरफेस एनर्जी को क्या रखना चाहेगा, मिनिमम रखना चाहेगा. तो वो क्या होगा, स्फेरिकल शेप लेना चाहेगा. टू डिटरमाइन द साइज वी कैलकुलेट द नेट वर्टिकल फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन व्हेन द रेडियस ऑफ द ड्रॉप इज आर. तो जब सरफेस टेंशन क्या है, टी है, सारे वर्टिकल फोर्स, और उस समय उसका रेडियस क्या है, आर. व्हेन दिस फोर्स बिकम स्मॉलर देन द वेट ऑफ द ड्रॉप. तो जब ये क्या हो रहा है कि जब इसका साइज क्या हो रहा है, ये फोर्स स्मॉल हो रहा है, तो उसका वेट क्या हो रहा है, ड्रॉप का डिक्रीज हो रहा है. द ड्रॉप गेट डिटैच, और ड्रॉप क्या हो जाता है, डिटैच हो जाता है. ओके, सॉरी, ये वेट इंक्रीज होने लगता है तो ये फिर फोर्स क्या हो जाता है, स्मॉलर हो जाता है. तो अब उसने बोल रखा है कि इफ़ द रेडियस ऑफ द ओपनिंग ऑफ द ड्रॉपर इज आर, अगर उस ड्रॉपर के रेडियस की ओपनिंग क्या है, स्मॉल आर है, द वर्टिकल फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन ऑफ द ड्रॉप, तो जो वर्टिकल फोर्स लगेगा सरफेस टेंशन की वजह से, उसकी वैल्यू क्या होगी, ये हमें क्या करना है, डिस्कस करना है. ओके, तो ये हमारी कुछ कंडीशन है कि ये ड्रॉपर का ओपनिंग है और यहाँ पे ये हमारा क्या है, ड्रॉप है इस पॉइंट पे, और इसको हमने मान लिया कि ये इसकी टोटल रेडियस क्या है, कैपिटल आर है. ओके, अब यहाँ से ये जो ड्रॉपर है उसकी रेडियस उसने बोल रखा है कि ये कितनी है, स्मॉल आर है. ठीक है, तो इन दोनों को जब कनेक्ट कर देंगे तो यहाँ पे ये जो थीटा, ये एंगल बन रहा है, ये क्या है हमारे पास, थीटा है. ओके, तो यहाँ से इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया. ओके, तो अब हमारे पास जो वर्टिकल फोर्स होगा, वो क्या होगा, द वर्टिकल फोर्स, जो वर्टिकल फोर्स यहाँ पे लग रहा है, तो यहाँ पे जो वर्टिकल फोर्स है उसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास, तो सरफेस टेंशन ड्रॉप के ऊपर वो क्या लगेगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो ये आ जाएगा हमारे पास टी कॉस थीटा इंटू एरिया ऑफ ओपनिंग जहाँ से डिटैच है, तो ये उसकी क्या होगी, उसकी मतलब एरिया नहीं, एक तरह से हम क्या लेते हैं, पेरीमीटर लेते हैं, उसकी लेंथ, टोटल लेंथ, जहाँ से वो क्या होता है, डिटैच होता है, ये 2 पाई आर के इक्वल हो जाएगा. ओके, तो अब कॉस थीटा हम अपने ट्रायंगल से देखें तो ये क्या है, कॉस थीटा की वैल्यू हमारी क्या है, स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर के इक्वल है, इनटू ये क्या हो गया, 2 पाई आर. तो ये जो वर्टिकल फोर्स आ गया हमारे पास, ये कितना आ गया, 2 पाई आर स्क्वायर टी अपॉन कैपिटल आर. ओके, तो ये हमारे पास आ गया, जो ड्रॉप है उसके ऊपर वर्टिकल फोर्स लग रहा है, तो ये किससे मैच कर रहा है, सी. तो सी क्या होगा, इसका राइट ऑप्शन होगा. फोर्थ का क्या है, सी राइट ऑप्शन है. अब अगले पार्ट में उसने क्या बोल रहा है कि अगर आर की वैल्यू इतना है, रो इतना दिया हुआ है, तो पूछा है कि द रेडियस ऑफ द ड्रॉप व्हेन इट डिटैच फ्रॉम द ड्रॉपर. तो रेडियस क्या होगा, जब ड्रॉपर क्या होगा, डिटैच होगा किससे, ड्रॉपर से. तो उस केस में हमारा फोर्स जो होना चाहिए, उस पर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो मैक्सिमम होना चाहिए. जब फोर्स जो मैक्सिमम हो जाएगा तो वेट की वजह से वो क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल कर जाएगा, तो वो डिटैच हो जाएगा. तो फिफ्थ केस में हमारे पास क्या होगा, जो ड्रॉपर का जो वेट होगा
वो वर्टिकल सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स लग रहा है उसके इक्वल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। तो ड्रॉप के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, स्फेरिकल शेप एज्यूम किया गया है, तो 4/3 पाई आर क्यूब, ये क्या हो गया, कैपिटल आर लेंगे, उसका रेडियस कैपिटल आर है, ये वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी उसकी रो हो गई इनटू जी, ये इसका वेट हो गया, और सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो हमने कैलकुलेट किया है, वो कितना है 2πr² टी अपॉन कैपिटल आर। तो हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ से आर की वैल्यू फाइंड करना है, तो यहाँ से आर की वैल्यू फाइंड करेंगे, पाई से क्या होगा, पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से यहाँ पे 2 बच जाएगा, आर टू द पावर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। आर टू द पावर 4 की जो वैल्यू आएगी ये कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 3/2 स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल टी अपॉन रो इंटू जी। ओके, ये वैल्यू आ गई। अब आर की पावर 4 आ गया है, तो आप जान सकते हैं कि कितना टफ कैलकुलेशन हो गया, तो इसको बिना कैलकुलेटर के सॉल्व नहीं किया जा सकता है। तो सारी वैल्यूज़ को क्या करते हैं, यहाँ पुट कर देते हैं, 3/2 इंटू स्मॉल आर की जो वैल्यू है वो कितना है 0.5 मिलीमीटर दी हुई है हमारे पास, स्मॉल आर की जो वैल्यू है क्या है, ये दे रखी है हमारे पास 5 × 10⁻⁻⁴। ओके, तो ये कितना है 5 × 10⁻⁻⁴, उसका क्या स्क्वायर, टी की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे पास 0.11 अपॉन में वाटर की डेंसिटी क्या है 1000 इंटू जी कितना है 10। तो जब यहाँ से आर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 1.4, सॉरी ये आएगा आर की पावर 4 की वैल्यू आएगी 4.12 इंटू 10⁻⁻12। तो आर की जो वैल्यू आएगी यहाँ से ये कितनी आ जाएगी 1.42 इंटू 10⁻³ मीटर। तो जो स्फीयर है उसकी वैल्यू कितनी आ गई 1.42 इंटू 10⁻³ मीटर। तो ये तो ये हमारा इसका 5th का ए आंसर इससे मैच करा है, तो 5th का क्या हो गया, ए आंसर इज राइट आंसर। अब 6 पार्ट में उसने क्या बोला है, आफ्टर द ड्रॉप डिटैच इट्स सरफेस एनर्जी, जब ड्रॉप डिटैच हो जा रहा है तो उसकी सरफेस एनर्जी क्या होगी। तो सरफेस एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, U इक्वल्स टू सरफेस टेंशन T इंटू एरिया। ओके, तो T की वैल्यू हमारे पास कितना दे रखा है 0.11 इंटू एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है 4πr²। तो यहाँ से क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं 0.11 इंटू 4 इंटू 3.14 इंटू आर की जो वैल्यू है कितनी है हमने कैलकुलेट की है, ये आई है 1.42 इंटू 10⁻³ इसका स्क्वायर। तो यहाँ से जो सरफेस एनर्जी आएगी, सरफेस एनर्जी आ जाएगी कितना 2.7 इंटू 10⁻⁻6 जूल। ओके, तो इसको अगर देखें अपने ऑप्शंस में तो 2.6, तो 7th का तो अब हमारे पास बी ऑप्शन से ये क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, सो 6 का बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ओके, A vessel containing water is given a constant acceleration a towards the right, a straight horizontal path. Which of the following diagram represents the surface of the liquid? So here we can say, suppose this is a container containing liquid. Now when the liquid is at rest, we know the, let's say, liquid is of this shape. Now suppose this container is, let's say, given a horizontal acceleration a towards right. So we can say here this, let's say, liquid particles experience a pseudo force in the backward direction m into a. Now due to this pseudo force we can say here this liquid particle will, let's say, move towards the left side and accumulate here. So the shape of the liquid particles will be, let's say, given as this shape. Here we can say this, let's say, liquid is inclined to the horizontal with some angle given as theta. So here we can say amongst the 4 options we can say the correct option depicting the shape of the liquid inside the vessel when it is accelerated towards right is option number 3. So option number 3 is the correct answer.
हेलो फ्रेंड, क्वेश्चन में बोल रहा है कंसिडर द थिन स्क्वायर प्लेट फ्लोटिंग ऑन ए विस्कस लिक्विड इन ए लार्ज टैंक. ओके, हाइट ऑफ द लिक्विड टैंक इज मच लेस देन द विड्थ ऑफ द टैंक. द फ्लोटिंग प्लेट इज पुल्ड हॉरिजॉन्टली विथ कांस्टेंट वेलोसिटी u नॉट. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू. ठीक है, सो हमारा जो सेटअप है वो कुछ ऐसा है. ये एक टैंक है, ठीक है, ये है टैंक का हाइट, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, यह है टैंक का है. लेट्स सपोज दिस इज h. ओके, ये जो हाइट है इसका वैल्यू बहुत ही कम है एज कंपेयर टू विड्थ ऑफ द टैंक. ठीक है, टैंक में कुछ लिक्विड फिल्ड है. ओके, इस लिक्विड के ऊपर टॉप सरफेस पे एक प्लेट रखा हुआ है. ओके, इस प्लेट को u नॉट स्पीड से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चलाया जा रहा है. ओके, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी के कॉन्सेप्ट पे डिपेंडेंट ये क्वेश्चन है. ओके, इसमें क्या होता है कि अगर ये प्लेट इधर u नॉट स्पीड से कांस्टेंट वेलोसिटी से इधर की तरफ चल रहा है. ओके, सो क्या होता है कि ये जो फ्लूइड है, ओके, ये फ्लूइड इस प्लेट के ऊपर विस्कस फोर्स लगाता है एंड रिलेटिव मोशन को अपोज करता है. ओके, सो ये फ्लूइड क्या करेगा कि इस प्लेट पे अपोजिट डायरेक्शन में एक विस्कस फोर्स लगाता है Fv. ठीक है, सो दैट कि ये इसके मोशन को अपोज कर सके. ओके, एंड इस विस्कस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है ये न्यूटन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग दिया जाता है. ओके, सो ये जो विस्कस फोर्स होता है, ओके, इसका मैग्नीट्यूड का वैल्यू होता है म्यू टाइम्स एरिया ऑफ द प्लेट इनटू डेल्टा वी डिवाइडेड बाई डेल्टा वाई. ओके, ये जो डेल्टा वी बाई डेल्टा वाई है, ओके, इसको हम लोग वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं. ओके, फ्लूइड के इस पोजीशन पे जो कि सरफेस के एकदम कांटेक्ट में है, ओके, इस पोजीशन का वेलोसिटी क्या होगा, वो होगा 0. ठीक है, फ्लूइड जिस भी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में होता है, ओके, उसके नजदीक में जो लेयर होते हैं उसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी गेन कर लेते हैं. ठीक है, ये लेयर जो कि इस रेस्ट सरफेस के कांटेक्ट में है इसका वेलोसिटी होगा 0. सिमिलरली यहाँ पे जो लेयर होगा, ठीक है, जो कि प्लेट के कांटेक्ट में होगा, ओके, इस लेयर का वेलोसिटी होगा u नॉट के बराबर. ठीक है, क्योंकि ये प्लेट के साथ कांटेक्ट में है तो ये जो लेयर है, ठीक है, प्लेट का वेलोसिटी अटेंड कर लेगा. ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो होगा h के बराबर. ओके, सो डेल्टा वाई का वैल्यू होगा h. ओके, एंड डेल्टा v का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच में जो वेलोसिटी का चेंज आया है वो आया u नॉट का. ठीक है, सो ये जो फॉर्मूला है ये बन जाएगा म्यू टाइम्स a इंटू डेल्टा u का वैल्यू हो जाएगा u नॉट. ओके, डिवाइडेड बाई डेल्टा y का वैल्यू हो जाएगा h. ठीक है, सो ये आ गया विस्कस फोर्स का फॉर्मूला है. यहाँ पे ये जो म्यू है, ठीक है, ये है विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड. ओके, अब देखते हैं ऑप्शंस बारी बारी. ठीक है, सो ऑप्शन है द रेजिस्टिव फोर्स ऑफ द लिक्विड on the plate is inversely proportional to h. Yes, this is correct. यहाँ से इस फॉर्मूला से हम लोग देख सकते हैं this force is inversely proportional to h. ठीक है, सेकंड ऑप्शन है the resistive force of liquid on the plate is independent of the area of the plate. Yes, this is incorrect. ठीक है, ये जो resistive force है, ठीक, ये एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. ओके, दिस इज द एरिया ऑफ द प्लेट. ओके, सो अब थर्ड ऑप्शन देखते हैं द टेंजेंशियल स्ट्रेस on the floor of the tank increases with u naught. ओके, सो टेंजेंशियल स्ट्रेस कैसे निकालेंगे, तो देखो इस प्लेट पे टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है Fv का. ओके, सो इस प्लेट के एरिया से इस फोर्स को डिवाइड कर देंगे तो टेंजेंशियल स्ट्रेस मिल जाएगा. ओके, सो टेंजेंशियल स्ट्रेस टाउ दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू Fv विस्कस फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ द प्लेट. ओके, सो इसका जो वैल्यू होगा वो होगा म्यू टाइम्स u नॉट डिवाइडेड बाई h. ठीक है, सो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि ये जो टेंजेंशियल स्ट्रेस है, ठीक है, ये u नॉट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. ओके, सो अगर u नॉट का वैल्यू इंक्रीज होगा तो टेंजेंशियल स्ट्रेस का भी वैल्यू इंक्रीज होगा. ओके, सो जो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड था वो भी सही हो गया. अब ऑप्शन नंबर 4 है द टेंजेंशियल और शियर स्ट्रेस ऑन द प्लेट वेराइज लीनियरली विथ विस्कोसिटी ईटा ऑफ द फ्लूइड. ओके, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. यहाँ पे देख रहे हैं कि जो टेंजेंशियल स्ट्रेस है, ओके, ये म्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. ओके, हम लोगों ने अपने फॉर्मूला में जो विस्कोसिटी था फ्लूइड का, ओके, इसको हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट किए थे. ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में जो विस्कोसिटी है, ठीक है, उसको ईटा से रिप्रेजेंट कर रहा है. ओके, सो अल्टीमेटली ये जो टेंजेंशियल स्ट्रेस है, ओके, ये इस लिक्विड के विस्कोसिटी पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. ओके, जो कि इस फॉर्मूला से क्लियरली विजिबल है. ओके, सो ऑप्शन नंबर 4 भी हमारा सही हो गया. ओके, सो इस क्वेश्चन का 3 ऑप्शन सही है, ऑप्शन 1, ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4. ओके, सो दिस इज द आंसर. आई होप यू गॉट इट. थैंक यू. Hello students, today our question is a drop of liquid of radius r is equals to 10 power minus 2 m having surface tension s is equals to 0.1 4 pi Newton per meter divide itself into k identical drop. In this process the total change in surface energy is
10 power minus 3 joule and K is 10 power alpha, then the value of alpha is, so we have to find the alpha value here. So the solution of this question is at the identical drop here, so their volume must be equal here, volume must be equal here. So this is 4 by 3 pi r cube here, and this is equals to 4 by 3 K time of constant. So this is 4 pi r cube here. So this, from this we get r is equals to, r is given to us minus 10 power minus 2, and we have small r is capital R into 10 power into K power, K constant, and this is minus 1 by 3. And if we differentiate A with respect to area with respect to, so we can write here pi, this is pi here, so we can write this as, this is K into 4 pi r square and minus 4 pi r square here. This is dA is equals to pi r square, and this is K power 1 by 3, and this is minus 1 here. So from this we get change in surface energy is equals to T into dA, tension into, so from this we get 10 power minus 3, and tension is 4 pi, and this is 4 pi r square, and this is K power 1 by 3, and this is minus 1 here. So from this we can write here 10 power 2 is equals to K power 1 by 3 minus 1 here. So we have K is, so we get K is 10 power 6, and we have given here K is 10 power alpha. So from this we get alpha is equals to 6. So this is our answer here. Thank you. Hey everyone, I'm going to explain this question, and the question is, two soap bubbles A and B are kept in a closed chamber where the air is maintained at a pressure of 8 Newton per meter square. The radii of the bubbles A and B are 2 cm and 4 cm respectively. The surface tension of the soap water used to make bubble is 0.04 Newton per meter. Find the ratio NB upon NA, where NA and NB are the number of moles where in bubbles A and B respectively. Alright, so this is a question like two bubbles are there. This A and the B, right? B has a larger radius. RB is equal to 4 centimeter and RA is equal to 2 centimeter. We have to find the ratio of number of moles upon number of moles in NB upon NA. Right? So just we will find at later point. So we have to find NB upon NA, right? So external pressure is given as 8 Newton per meter square. See, we know that excess pressure, right, for bubble, we know the value of this is 4S upon R, right? Here S is surface tension, R is radius of it. So for A, let's say for A, Pxs should be equal to P inside minus P outside, which is equal to 4 into value of S. Value of S is given as 0.04. Okay? 0.04 divided by radius is given as 2 cm, that is 2 into 10 raised to minus 2, which gives us P inside is equal to P outside. P outside is given as 8 Newton per meter square, right? So it will be 8 plus this will be 10 raised to minus 2. So this will overall this will be 4 into 4, 16 divided by 2, 8. It gives us 16 Newton
per meter square. Right. Similarly, for B, T inside should be 8 plus 4 into 0.04 divided by 4 into 10 raised to minus 2, which gives us 4. This will cancel out, so this 4 plus 8 is 12 Newton per meter square. Right, and we know that PV is equal to nRT. Right, here R is the constant, gas constant. Volume is the volume will be 4 by 3 pi r square, right? So we can simply say PA VA divided by PB VB should be equal to NA upon NB, since temperature is constant and R is also constant. Or in other words, NB upon NA should be equal to PB into VB, right? 4 by 3 pi R B cube divided by, this is VB, PA into 4 upon 3 pi RA cube. Right. Solving this, we will get value of PB is 12 and value of PA is 16 multiplied by RB. Value of RB is 4, right? 4 cube divided by value of R is 2 cube, which gives us 12 into 64 upon 16 into 8. Right. So this will be 4, this will be 2, this will be 6. Right. So NB upon NA is, so if you look at the options, our answer will be option C. Okay, this was the explanation. Hope you understood it. Bye bye. Hello everyone, let us start with our question. In this question, what is given? A container of weight 2A is filled with a liquid. Now a thin wire of weight per unit length lambda is gently placed on the liquid surface in the middle of the surface as shown in the figure. So here we have placed a wire, okay, on the middle of this surface. Now as a result, so the liquid surface is depressed by a distance y, which is very less than A. Now if the surface tension is given as to be 4 lambda Ag by Ky, then we need to calculate what is the value of the K. Okay. So in this situation, what are the various forces which would be acting? So here there would be a force, okay, which would be acting. Let's say this force is F. Here also there would be a force because it is basically placed at the middle position. So the force value would be same, and there would be a weight which would be acting vertically downward. Okay, this is the weight of the this rod which has wire which has been placed. So if we draw the forces, so one force is like this, okay, another force is like this, okay, and the force due to weight is like this, okay. Now this is the value W, okay. Now this is F and this is F. Let us assume that this angle is theta. So if this angle is theta, here would be F cos theta, here would be F cos theta, so both will be cancelled, and here it would be F sin theta and then F sin theta. So that means 2F sin of theta. That means 2F sin theta would be equals to this 2F sin theta would be equals to the weight. Okay, it would be balancing the weight. Now in terms of the surface tension, how can we write this force? In terms of surface tension, we know that F is equals to S into surface tension times the length. Why? Because surface tension is force per unit length multiplied by L. So if we place this into this equation, then it would be 2S into L. Then what would be the value of the sin theta? So we have seen that this is our theta. So if we see our figure, so this would be our theta, this would be our theta. So that means what would be the value of the sin theta? It would be equals to perpendicular divided by hypotenuse. So what is the perpendicular? It is y. So we put y divided by what would be the hypotenuse? It would be y square plus a square in the square root. This would be equals to weight. What would be the weight? Weight would be lambda, okay, lambda, but it is weight per unit length. So multiplied by length, then multiplied by g, because this is mass and this is weight. Okay. Now we can see here it is given that y is very less than a. So if y is very less than a, then y square would be very less than a square. So we can say that it is just equals to
2SL into y divided by a, because this we can neglect. So it is equals to lambda L by G. So from here our surface tension would turn out to be what? Lambda Ag divided by 2y. Now this surface tension is given as to be equals to 4 times lambda Ag divided by ky. Now if we compare this two equations, so rest of the thing would be cancelled. Here just it would be left with 1 by 2 would be equals to 4 by k. So from this expression we can say that our k is equals to 8. So this is our final answer for k. This is what we need to find. So hope you have understood the solution. Thank you. क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, एक लिक्विड है जिसका डेंसिटी है 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। वो हम लोग क्या किया है कि एक सिलिंड्रिकल टैंक में भरा है जिसका अपर रेडियस है 0.9 मीटर एंड जिसका लोअर रेडियस है 0.3 मीटर। ये देखिए, ये है हम लोग का सिलिंड्रिकल टैंक। अपर रेडियस 0.9 मीटर है, लोअर रेडियस 0.3 मीटर है। ओके, अभी रेडियस 0.002 मीटर होने वाला एक क्या है 0.002 मीटर होने वाला क्या है एक कैपिलरी ट्यूब हम लोग कनेक्ट किया है नीचे। ओके, हम लोग क्या किया, टॉप ऑफ द टैंक में एक प्रेशर P हम लोग अप्लाई किया। तब हम लोग देखा कि वॉल्यूम फ्लो रेट ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू 8 × 10⁻⁻⁶ मीटर क्यूब पर सेकेंड है। ओके, कैपिलरी ट्यूब अगर हम लोग डिटैच करते हैं तब हम लोग देख रहे हैं कि लिक्विड कम्स आउट ऑफ द टैंक विद अ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी में आ रहे। अगर हम लोग कैपिलरी ट्यूब को डिटैच करते हैं, हम लोग को पूछ रहे हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कितना होगा, ये है क्वेश्चन। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अप्लाई करते हैं इधर एक पॉइंट हम लोग लेते हैं A, इधर एक पॉइंट हम लोग लेते हैं A एंड किधर एक पॉइंट लेते हैं हम लोग B, इधर एक पॉइंट लेते हैं हम लोग B। ओके, इधर का पॉइंट है A एंड इधर का पॉइंट है B। Okay, we know that applying Bernoulli's theorem, let's apply Bernoulli's theorem at A and B. Okay, applying Bernoulli's theorem at A and B, we will get pressure at A plus half into rho into VA square plus rho G into H into A is equal to pressure at B plus half into rho into VB square plus rho G HB, है ना। रो जी एच बी हम लोग को मिल जाएगा। अगर हम लोग को बोला गया है इधर का कैपिलरी ट्यूब अगर हम लोग निकाला तो हम लोग को इधर एक वेलोसिटी मिलेगा। ये हम लोग को बोला गया था कि इफ वी रिमूव दिस कैपिलरी ट्यूब वी विल गेट अ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। देयरफॉर हम लोग ये बी वाला पॉइंट छोड़ के इधर एक पॉइंट लेते हैं ताकि इधर का वेलोसिटी हम लोग को पता है। वी कैन राइट पी ए प्लस हाफ इंटू रो इंटू वी ए स्क्वायर प्लस रो जी एच ए is equal to PC plus half into rho into VC square plus rho GHC। अगर हम लोग देख रहे हैं प्रेशर एट ए क्या है, प्रेशर एट ए इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर है प्लस हम लोग एक प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं P प्लस क्या हो जाएगा प्लस P0 प्लस P है उधर का प्रेशर। ओके, P0 प्लस P है उधर का प्रेशर। और हम लोग अगर देखेंगे नीचे का प्रेशर कितना है PB, प्रेशर एट C इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0। अभी हम लोग एज्यूम करते हैं कि यह कैपिलरी ट्यूब का हम लोग निकाल दिया, ठीक है। PC इज इक्वल टू P0 हो जाएगा। ओके, देयरफॉर वी कैन राइट P0 प्लस P प्लस हाफ इंटू रो इंटू वी ए स्क्वायर प्लस रो इंटू जी इंटू एच। ओके, इतना हाइट ऊपर है, ये रो इंटू जी इंटू एच हाइट ऊपर है। इट इज इक्वल टू प्रेशर एट सी इज इक्वल टू P0 प्लस हाफ इंटू रो इंटू वी सी स्क्वायर प्लस रो जी एच सी इक्वल टू 0। देयरफॉर हम लोग को बोल सकते हैं कि वो टर्म क्या है, कैंसिल है। इधर से हम लोग को लिख सकते हैं कि P प्लस रो जी एच, P0 कैंसिल, P प्लस रो जी एच इज इक्वल टू हाफ इंटू रो इंटू वी सी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर, वी सी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर हम लोग को लिख सकते हैं, है ना। इधर हम लोग देखते हैं वी सी एंड वी ए के बीच का डिफरेंस क्या है। वी नो दैट अगर हम लोग इधर का पॉइंट और इधर का पॉइंट जब हम लोग लेते हैं, वी नो दैट हम लोग को बोला गया है जब हम लोग कैपिलरी ट्यूब निकाला तब हम लोग इधर का वेलोसिटी देखा 10 मीटर पर सेकेंड है बाय प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। ओके, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी का प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वी कैन से दैट प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी इज ए कांस्टेंट। प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी क्या है, एक कांस्टेंट है। देयरफॉर वी कैन से दैट
पाई इंटू R1 स्क्वायर इंटू V1 स्क्वायर इट इज़ इक्वल टू, एक्चुअली मैं VA लिखना चाहता हूँ इसको, इट इज़ इक्वल टू पाई इंटू R2 स्क्वायर इंटू VC स्क्वायर, सिंपल एज दैट। इट इज़ इक्वल टू ऊपर का रेडियस हम लोग को दिया गया है कि पाई इंटू रेडियस कितना दिया है ऊपर का 0.9 मीटर रेडियस है, देयरफॉर पाई इंटू 0.9 स्क्वायर इंटू VA स्क्वायर इज इक्वल टू पाई इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी का है, वेलोसिटी स्क्वायर हम लोग करने का कोई ज़रूरत नहीं है, देयरफॉर वी कैन से दैट इंटू VA इज इक्वल टू पाई इंटू R2 हम लोग को दिया कि 0.3 स्क्वायर है, 0.3 स्क्वायर इंटू VC इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, देयरफॉर इधर VA हम लोग अगर लिखेंगे इट इज़ इक्वल टू 0.3 डिवाइड बाई 0.9 द होल स्क्वायर इंटू 10 है, इंटू 10 एज सिंपल एज दैट। इट इज़ इक्वल टू 3/9 मेरे को लिख सकते हैं, 3/9 स्क्वायर इंटू 10 इट इज़ इक्वल टू 27 डिवाइड बाई 81 इंटू 10 हो जाएगा, 27 डिवाइड बाई 81 इंटू 10 इट इज़ इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 3 इंटू 10 इज़ इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 27, है ना। क्या हो जाएगा 27 डिवाइड बाई 81 इज इक्वल टू 3, 10 डिवाइडेड बाई 3 मीटर पर सेकेंड। ओके, वेलोसिटी एट ए इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 3 मीटर पर सेकेंड हो गया। ओके, देयरफॉर ये वैल्यू अगर हम लोग उधर पुट करेगा P0 प्लस H इंटू रो इंटू जी इट इज़ इक्वल टू हाफ इंटू रो इंटू VA स्क्वायर माइनस VB स्क्वायर है, VC स्क्वायर माइनस VA स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर, है ना। इट इज़ इक्वल टू जब वैल्यू पुट करेगा हाफ इंटू रो इंटू 10 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर डिवाइड बाई 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 100 डिवाइड बाई 9 है। ओके, इट इज़ इक्वल टू हम लोग को मिलते हैं, इट इज़ इक्वल टू हाफ इंटू रो हम लोग को वैल्यू दिया गया है कि रो इज़ इक्वल टू 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, देयरफॉर 900 इंटू 10⁻² हम लोग बाहर निकाला 1 माइनस 1/9। okay, it is equal to 1/2 into 900 into 10⁻² into 9 minus 1 is equal to 8 divided by 9, है ना। इट इज़ इक्वल टू हम लोग को लिख सकते हैं, इट इज़ इक्वल टू 8 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4, 4 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 9 आ जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 900 इंटू 10 स्क्वायर it is equal to 8 divided by 2 is equal to 4 divided by 9 into 9 into 10⁻⁴ it is 10⁻⁴, ये 10 square into 9 अभी क्या हो जाएगा, it is equal to 9 कैंसिल, 4 into 10⁻⁴ हो जाएगा, 4 into 10⁻⁴। देयरफॉर ये जो कैपिलरी ट्यूब है ना, ये कैपिलरी ट्यूब का दोनों साइड का बीच का प्रेशर डिफरेंस हम लोग को मिल गया, इट इज़ इक्वल टू P0 प्लस H रो जी, P0 प्लस H इंटू रो इंटू जी इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये है प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द कैपिलरी। वी नो दैट रेट ऑफ फ्लो इज इक्वल टू प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द एंड्स इंटू पाई इंटू R⁴ डिवाइडेड बाई 8 इंटू ईटा एल है, डेल्टा P इंटू पाई इंटू R⁴ डिवाइडेड बाई 8 इंटू ईटा एल है। ओके, ये हम लोग को लिख सकते हैं डेल्टा P इंटू पाई इंटू R स्क्वायर इंटू पाई इंटू R स्क्वायर इंटू R स्क्वायर डिवाइडेड बाई हम लोग को क्या लिख सकते हैं, R स्क्वायर डिवाइडेड बाई L डिवाइडेड बाई 8 ईटा लिख सकते हैं, है ना। इधर से हम लोग को मिल जाएगा Q इंटू 8 ईटा, Q इंटू हम लोग को चाहिए ईटा, देयरफॉर मैं ईटा बस एक इधर लिखता हूँ, बाकी सब दूसरे साइड लेके जाते हैं। ईटा इज इक्वल टू डेल्टा P इंटू पाई R स्क्वायर पाई इंटू R स्क्वायर डिवाइड बाई L डिवाइडेड बाई 8 इंटू Q, है ना। ये मैं थोड़ा क्लियरली लिखता हूँ, डेल्टा P प्रेशर डिफरेंस इंटू पाई इंटू स्मॉल r स्क्वायर डिवाइड बाई L डिवाइडेड बाई 8 टाइम्स Q। ओके, इसमें किसका वैल्यू हम लोग के पास नहीं है, सब का वैल्यूज हम लोग के पास है। डेल्टा P इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁴ है इंटू पाई इंटू R स्क्वायर का वैल्यू हम लोग का एक्चुअली क्वेश्चन में ही दिया गया है, पाई इंटू R स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻⁻⁶। ओके,
10 रेज टू माइनस 6 है इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई एल का भी वैल्यू दिया गया है 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 6 करके डिवाइडेड बाई 8 टाइम्स क्यू 8 इंटू क्यू का वैल्यू कितना है दिया है क्यू इज इक्वल टू 8 इंटू 10 रेज टू माइनस 6 है 8 इंटू 10 रेज टू माइनस 6 10 रेज टू माइनस 6 10 रेज टू माइनस 6 कैंसिल करते हैं वी नो दैट इट इज इक्वल टू 4 इंटू 2 8 8 कैंसिल करते हैं वी विल गेट इट इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हम लोग को 10 रेज टू 4 इंटू 10 रेज टू माइनस 6 10 रेज टू 4 इंटू 10 रेज टू माइनस 6 डिवाइडेड बाई एक 8 बचेगा नीचे 8 ओके इट इज़ इक्वल टू 1 बाई 8 इंटू 10 रेज टू माइनस 2 लिख सकता हूँ मैं इट इज़ इक्वल टू 0.125 इंटू 10 रेज टू माइनस 2 इट इज़ इक्वल टू 1.25 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 SI यूनिट्स ओके 1.25 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 SI यूनिट्स से कौन सा ऑप्शन हम लोग का सही है ऑप्शन ए होल्ड्स द राइट आंसर